औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के कोर्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। Functional specification or sometimes functional specification is a formal document used to describe in detail for software developers a product's intended capabilities, appearance, and interaction with the users. Functional specification, how the system will perform its functionalities. The functional specification is the kind of guideline and continuing reference point as a developer write the प्रोग्रामिंग कोड। फंक्शन स्पेसिफिकेशन सिस्टम के यूजेज के बारे में, जो फ्रंट एंड पे जो है सिस्टम के साथ यूज़र का इंटरेक्शन के, हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटीज़, हाउ इट विल वर्क, इसके जो है कौन सा काम किस तरह ये परफॉर्म करेगा। एट लीस्ट वन मेजर प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रुप यूज्ड right and manual first approach before the product existed. They wrote the user's guide for a word processing system and declared that the user guide was the functional specification for the any। जिस तरह अगर कोई भी सिस्टम बन रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, how that system, how that software will work. The developer were challenged to create the product that matched with what the user guide described. कि यूज़र्स जो है वो किस तरह एक यूज़र गाइड, उसके लिए अगर कोई सिस्टम बनेगा तो उसके लिए कोई यूज़र गाइड भी बनेगा कि हाउ दैट सिस्टम विल बी यूज्ड, हाउ द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। सो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ऑल द फंक्शनैलिटीज़ विल बी स्पेसिफाइड हेयर कि द सिस्टम किस तरह काम परफॉर्म करेगा, किस तरह इसकी फंक्शनैलिटी को, किस तरह इसके मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करेगा। टिपिकली द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन for an application program with the series of interactive windows and dialogue with the user would show the visual appearance of the user interface and describe each of the possible user inputs, action and the program response action। कि किस तरह एक सिस्टम जो है सिस्टम से यूज़र किस तरह इंटरेक्ट करेगा and how that multiple pathways are used for the operation of that some specific task by the user in using that system. A functional specification may also contain formal description of user tasks कि किस तरह यूज़र्स के मल्टीपल टास्क, किस तरह एक एक्शन के बाद अगला एक्शन परफॉर्म होगा, एक विंडो ओपन होगी, उसके बाद उसी विंडो में मल्टीपल कितने बटन्स होंगे, किस तरह वो इंटरेक्ट करेगा, कौन सा बटन कौन सा काम परफॉर्म कर रहा है। डिपेंडेंसी ऑन द अदर प्रोडक्ट एंड यूजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैनी कंपनीज हैव अ गाइड फॉर द डेवलपर्स that describe what topic any product function specification should contain for a sense where the function specification fits into the development process. Here are typical series of steps in developing a software product. So functional specifications specify the functionalities of the system, how the system will work, how the user will interact with the system, and how the functionality will be performed by the users, and which are the pathways, किस path से जाके कौन सा action perform होगा और किस तरह action perform होगा, and how the system will decide which operation should be performed next. So for a sense where the functional specification fit into the development process, here are typical series of steps in developing a software product. Now we will discuss these steps. First one is requirements. This is a formal statement of what the product planner informed by their knowledge of the marketplace and specific input from existing or potential customer believe is needed for a new product or a new version of an existing product कि क्या क्या requirements है सिस्टम यूज़र्स की और किस तरह जो एक आइटम अवेलेबल है इन द मार्केट तो उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है कि उसमें क्या क्या एडिशन करनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिवली जर्नल वेज। So all the requirements of the users which are using the system. So
उसी रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रख के हम उसमें फ़र्दर इन्हेंसमेंट करेंगे, या अगर कोई न्यू सिस्टम बनेगा तो यूज़र्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको माइंड में रखते हुए कि जो करंटली एक सिस्टम अवेलेबल है तो उसका अगर अगला वर्जन जनरेट करना है तो करंट वर्जन में क्या क्या ड्रॉबैक्स है या क्या क्या डिफिशेंसीज है जिसको रिमूव करके हमने अगला सिस्टम डेवलप करना है। और अगर इसमें अगर करंटली एक नई चीज़ बन रही है तो यूज़र के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको माइंड में रख के हमने एक अगला सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। सो एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are written by the product designer in the response to the requirements. रिक्वायरमेंट्स के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है सिस्टम के लिए, तो उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स को कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने इस टास्क को इस गोल्स को जो है गेन करना है, इस टास्क को परफॉर्म करना है। दे describe in a more specific way that what the product will look like, कि किस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, हमारा मेन मकसद क्या होगा सिस्टम में, हम किस तरह हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव में डिस्क्राइब्ड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड to which the product will conform. Meaningful, measurable objectives are those that set some criteria by which the end product can be judged. Measurability can be in terms of some index of the customer specifications, in terms of capabilities and task times. Objectives must recognize time and resource constraints. The development schedule is often the part of the corollary of the ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिस तरह हमने डिस्कस किया है अगर कोई सिस्टम नया बन रहा है तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, और अगर करंटली अवेलेबल है उसका अगर हमने अगला वर्जन जनरेट करना है तो फिर उस रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रख के हमारे फिर गोल्स होंगे, कुछ एम्स होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि ये रिक्वायरमेंट है और हमने इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सो रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए हमने अगले ऑब्जेक्टिव्स पे जो है कि हमने हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन इज़ अ फॉर्मल रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। अब ये है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो है उसके रिस्पॉन्स में हमारे क्या क्या मकासद है, हमने क्या क्या करना है, सिस्टम किस तरह बनाना है, फिर हमने वो फंक्शंस को स्पेसिफाई भी करना है कि हवे वट किस तरह ये फंक्शन स्पेसिफाई होंगे, किस तरह सिस्टम बनेगा। इट डिस्क्राइब ऑल एक्सटर्नली यूज़र एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस दैट द प्रोडक्ट मस्ट सपोर्ट। सो द फंक्शन स्पेसिफिकेशन इज़ द फॉर्मल रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायरमेंट्स के बाद और फिर रिक्वायरमेंट्स के माइंड में रख के ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख के हमने उस फंक्शनल्स को स्पेसिफाई करना है। डिस्क्राइब दैन all the external users and programming interfaces that the product must support. And next is the design change request. Throughout the development process is the need for the change to the function specification is recognized. A formal change is described in the design change request. So design change request throughout the development process जो है फर्दर हमने कोई इसमें इन्हेंसमेंट करनी है, कोई चेंजेस करनी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। टाइम के साथ साथ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो रही होती है। थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज द नीड फॉर द चेंज टू द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन रिकोगनाइज्ड। अ फॉर्मल चेंज इज डिस्क्राइब्ड इन द डिज़ाइन चेंज रिक्वेस्ट कि किस तरह हमने जो है जो करंटली एक डिज़ाइन अवेलेबल है हमने उसमें किस तरह चेंजेस करनी है और उसमें आगे क्या क्या एनहेंसमेंट करनी है। फिर है लॉजिक स्पेसिफिकेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल मेजर ग्रुप्स ऑफ द कोड मॉड्यूल्स दैट सपोर्ट अ सिमिलर फंक्शन, individual code modules and their relationships and the data programmers that they pass to each other may be described in a formal document called the logic specification. The logic specification describe the internal interface and is for use only by the developers, testers and later to some extent the programmers that service the product and provide code fixes to the field। कि लॉजिकल स्पेसिफिकेशन कि किस तरह एक सिस्टम किस तरह फला मॉड्यूल काम परफॉर्म करेगा,
कौन से लॉजिक्स को माइंड में रख के, मतलब लॉजिकली एक चीज़ हमारा एक कौन सा एक्शन किस तरह परफॉर्म करेगा। जिस तरह अगर कोई डिसीजन स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम कौन सा डिसीजन, कोई डिसीजन लेनी है सिस्टम ने कि किस तरह मल्टीपल पाथ से जो है डेटा जाना है, तो डिसीजन स्टेटमेंट हमारे पास मल्टीपल है, इफ़ एल्स है, स्विच है। अब डिपेंड करेगा हमने कौन सा लेना है। सो लॉजिकल, अब या अगर हम लूपिंग यूज़ कर रहे हैं तो लूपिंग में मल्टीपल टाइप से हमने आया फॉर लूप यूज़ करना है, वाइल करना है या डू वाइल करना है, ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम कि हमने सिस्टम में क्या क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने वो चीज़ डिसाइड करनी है कि हमारा जो कोड है वो किस तरह जनरेट होगा, हमने इसको कैसे बनाना है। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इन जर्नल, ऑल द preceding documents except the logic specification are used as a source material for the technical manual and online information such as help pages that are prepared for the product user। जिस तरह आप लोगों को यूज़र डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है, जो पूरा विजन को हम डिस्कस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को हमने डिस्कस किया है कि डॉक्यूमेंटेशन हैज़ ऑल द डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें जितनी भी जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी सारी डिटेल्स फ्रॉम स्टार्ट टू अप टू द एंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। जितनी भी डॉक्यूमेंटेड फाइल होती है अबाउट द प्रोजेक्ट, उस दैट इज़ ऑल द यूज़र डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि सिस्टम जो बना है, रिक्वायरमेंट्स की सारी पेजेस, कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है, वो मॉडल यूज़ क्यों हुआ है, ये सारा कुछ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पढ़ चुके हो। ठीक है कि हमें जो है इसका विजन डॉक्यूमेंट हम बनाते, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं मल्टीपल स्टेप्स में कि किस तरह हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। टेस्ट प्लेन, मोस्ट डेवलपमेंट ग्रुप्स हैव अ फॉर्मल टेस्ट प्लेन दैट डिस्क्राइब द टेस्ट केसेस that will exercise the programming that is written। ठीक है, तो टेस्ट प्लान वो है कि आप डिफरेंट वे टेस्टिंग का फेज़ भी पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। टेस्ट प्लान प्रिपेयर होगा कि किस तरह हमने सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है कि आया ये अपना काम किस किस वे से परफॉर्म करेंगे। टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन मल्टीपल वे, टेस्टिंग इज डन एट द मॉड्यूल और यूनिट लेवल, एट द कंपोनेंट लेवल और एट द सिस्टम लेवल इन द कंटेक्स्ट विद अदर प्रोडक्ट्स। This can be though of the alpha testing. The plan may be also for the beta test. Some companies provide the early versions of the product to selected groups of the customer for the testing in a real world situation। Test plan, how the system will be tested, जिस तरह हम सिस्टम को बनाएंगे उसकी अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको भी डिस्कस हम कर चुके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसमें टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम की सिस्टम हमारा काम किस तरह परफॉर्म करेगा, किस वजह से सिस्टम काम परफॉर्म करेगा, और फिर उसको मल्टीपल वे से हम उसको चेक कैसे करेंगे कि उसमें जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को एंटर करके फिर वो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर रन होगा और उसके अब मल्टीपल उसके जो है रिजल्ट्स आने हैं कि किस तरह हमारा सिस्टम जो है वर्क करेगा, उसकी फंक्शनलिटी कैसे होगी। तो टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम, सो फॉर द टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम अ टेस्ट प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। The final document, the final product, ideally the final product is a complete implementation of the function specification and design change requests, some of which may result from the formal testing and the beta testing। the final product, जो एंड पे जो प्रोडक्ट बन के आता है, सारा जो हम जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इन सब पॉइंट्स से गुजर के जो एंड पे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है, आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ द प्रोसेस, टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम, टेस्टिंग के बाद कि जो टेस्ट होने के बाद हम वैसे भी कोई भी चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है, या कोई भी प्रोडक्ट आप लाते हो या कोई नई चीज़ आप परचेज़ करके लाते हो घर में या कोई भी चीज़ है तो उसको पहले टेस्ट करते हो आया इसका टेस्ट कैसा है, या खाने की चीज़ है, या अगर आप लोगों ने कोई ड्रेस बनाया है तो जब ड्रेस बन के आता है, ठीक है, तो पहले चेक करते हो, टेस्ट करते हो कि आया इसकी फिटिंग इस तरह है सही। कोई भी चीज़, अगर आप कोई शूज़ ले रहे हो तो आप डायरेक्ट बाय नहीं करते, आप पहले टेस्ट करते कि आया है मेरे पाँव पे पूरा है या नहीं है। तो टेस्टिंग, तो इस तरह सॉफ्टवेयर भी बन के जब आता है तो उसको टेस्ट करते कि आया जो रिक्वायरमेंट्स गिवन है उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर भी रहा है कि नहीं। तो टेस्ट प्लान के बाद जो फाइनल एक चीज़ बनती है, ठीक है, डेट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट्स के बाद हर चीज़ फाइनल आ जाती है कि ये हमारी टेस्टिंग के दौरान अगर कोई ड्रॉबैक निकल आती है तो उसको ड्रॉबैक्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट आइडियली प्रोडक्ट
इज़ कम्प्लीटेड आइडियली, मतलब ये कि चीज़ बन के आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कंप्लीट हो गई है, इज़ अ कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन चेंज रिक्वेस्ट, सम ऑफ विच मे रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मल टेस्टिंग एंड द बीटा टेस्टिंग। सो यहाँ पे जो है जो फाइनली एक चीज़ बन के आती है आपके पास, जो एक प्रोडक्ट बन के आता है आफ्टर ऑल स्टेजेस, जितने भी स्टेजेस हैं इसको सारे कंप्लीट करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, डेट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, जो कि एक आइडियल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह हमारे जो जितने भी ऊपर स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट फेज है, लॉजिकल स्पेसिफिकेशन, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन हो गया, टेस्टिंग के बाद वो सारा प्रोसेस हो गया, और जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आता है जो कि मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो है रेडी होता है, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।